Okay. So pricing. So what does basically a price mean? So price is the amount of money charged for a product or a service. So it is the amount of money that you are charging for from your customers for providing them a product or a service. More broadly, price is the sum of all the values that customers give up to gain benefits of having or using a product or service. So what basically it includes all the values that customers are ready to give up. They are ready to forego that uh, value, that work for gaining the benefits of a product or service that you are providing. So, in economics, you must have studied opportunity cost. You must have studied opportunity cost. So what basically opportunity cost means? It means that the cost foregone for next best alternative. So what is best alternative you are going to have? You are just giving up the present scenario or present cost, you can say. So pricing is something like that. So your customer is giving up values that he or she has to gain the benefits of product or service that you are providing to him or her. So simply it is the sum of the values that customers exchange. There is exchange relationship for the benefits of having or using the product or service. With whom they are exchanging? They do have price. They are paying you money, and by paying you money, they are expecting some values or benefits from your side. They are expecting some values from your side. Suppose you are a shopkeeper and you store some items. I come to your shop and I ask for a particular item. I pay you price and you give me that particular item. So in this process, we are in the exchange. So I am paying you money and you are providing me particular good or service. So what your customer does, he simply exchanges the money for the benefits of having or using the product or service that you are going to provide him or you are providing him. So price is the amount of money, first thing, that is amount of money that you are charging for a product or service that you are providing to your customer, and it is sum total of all the values that customers give up. Basically what values customers have? They have price, they are paying you money. So money is of course value for customers, because I am paying you my hard earned money. So I must get some values, some benefits from that money that I am going to pay you. So I must get some benefits so that I can pay you. I do not feel cheated, or I do not feel that my money has been wasted. So you must provide me some benefits, some values that for which I am paying you. So all the values that customers give up, because I am giving up those values, that is basically I am paying you prices. Simply giving up here means suppose if I didn't want to purchase your product, then I might have gone to some other shop. I might have gone some another shop. So simply what I am doing as a customer, I am simply giving up an option to purchase your product. Simple thing. Because if I have money, I can purchase from anywhere. But I am purchasing a particular product, that is, I am giving up another product. So when I am giving that another product, I must get some benefits or some uh, values that your product will be providing to me. So it is the sum of the values that customer exchange for the benefits of having or using the product or service. So price is the only element in the marketing mix that produces revenue, that generates revenue. It is the source of profit.
all the other elements in marketing mix will require cost, whether it is promotion, whether it is place, whether it is your product, they all will require money. They do have cost element, but price is the only element in the marketing mix that produces revenue. It is the source of your income as far as the case of your product is concerned. So it generates revenue for you. Price is also one of the most flexible marketing elements, but at the same time, it requires a lot of thinking, a lot of deliberation, a lot of analysis, a lot of out of the box thinking to decide the price tag for a product. Because on the basis of price tag of a product, your customer may come to you, they might even forget your product, or they simply reject your product. It is based on simply on the price. Unlike product features and channel commitments, prices can be changed quickly, but you have to be very careful. You, by the virtue of flexibility of the prices, you can change them quickly, but you have to be very careful. Why we need to be very careful? Because I told you that prices can attract your customer or distract your customer. So you have to be very careful. Suppose you are producing some any car, and you are giving that car a price tag that is not in the affordable limits. So many of your customers may not come up for purchasing your car. They may switch over to another competitors, another brand. So you have to be very careful. At the same time, pricing is the number one problem facing, because many marketing executives and many companies do not handle pricing well. The reason they do not handle pricing well, they do not understand what is the pricing strategy. What should be my pricing strategy for a particular product? So, let's take an example of product life cycle. When we were discussing product life cycle, we did see four stages of product life cycle. That was introduction, then your growth, then maturity, then decline, and finally the abandonment. That was the fifth stage in the product life cycle. So what we saw in that product life cycle, we did see that the product life cycle in the initial stages, in the introduction stages, has some low level of sales, low level of selling of your product, low level of income, and hence profit is either negative or it is very low. In the growth stage, your profits grow. In the maturity stages, your profit and sales are maximum. From decline stage, your profits and sales start to decline. So all these all in सर सर कुछ लोग ज्वाइन करने के लिए वेट करते हैं सर. Just a minute. So yes, so in those 4 stages or 5 stages of product life cycle, what we saw that we do decide our prices in those product stages of product life cycle. When we also observe that when our product is falling, that was the case of decline stage. We try to
reduce our prices so that we can attract our customers. So your pricing strategies must be handled very carefully. Otherwise, you are going to face problems in marketing, and you will not be able to survive in the marketplace. So your pricing strategies should be designed very carefully, and they should be handled properly. So some managers view pricing as a big headache, preferring instead to focus on other marketing mix elements. That is another mistake, because when we are dealing with pricing, we must be careful about our pricing strategies. We should not focus on other elements of marketing. Other elements of marketing have already played their role. Now it is the term of pricing that needs to be designed carefully, because your product, your place, and your promotion, all these elements have already been designed and they have been executed in advance. But now it is the turn of pricing that you need to give a price tag for your product. That is something annoying when people join in between, because we have already discussed half of our today's discussion. So as a marketer, you need to design your pricing strategies very carefully, and as time requires or as the marketing environment changes, you should also be able to adapt your pricing strategies. You should be able to design your pricing strategies accordingly. You should keep trying to keep up pace with time. With the passage of time, you should be designing your prices accordingly. So that was all about price. What does price mean, and what we should keep in mind while going for designing a price tag for our products. Now, moving ahead, some pricing strategies. How we can decide price tag for a product. So pricing decisions, like other marketing mix decisions, must start with customer value. That is, your product must provide some value to your customer. When a customer is paying you some money, he must get in return some value for that particular money. So when customer buy a product, they exchange something of value. What they are exchanging? Price. They are paying you prices. They are paying you money to get something of value, the benefits of having or using the product. So what benefits your product is going to provide to your customers, that for that they are paying you. So you must give some benefits. Your product must give some benefit to your customer, so that they will be paying you, so that they use your product, or at least they feel that I have product of this particular company. For example, when we sometimes in luxurious items, we try to display or show our status in the society. So what we do, we buy some expensive items so that people think that this particular person belongs to a class, a social status that is higher in the society that he or she lives in. So your product must provide that status when your customer is paying you extra. So effective customer oriented pricing involves, what does it involve? Understanding how much value consumers place on the benefits they receive from the product, and setting a price that captures that value. So you must be trying to make a combination of price and value. Simply, you must try to strike a balance between the values you are providing to your customers
and you must at the same time also try to charge accurate prices for that particular value that you are providing to your customer. So you must try to strike a balance between the product or the value that you are providing to your customers, and accordingly for that particular value or product you should also design an appropriate pricing strategy, an appropriate price tag for that particular product, so that your customer does not feel that I have been cheated, I have been offered some inferior goods while I paid higher prices. सब एक एग्जांपल छोटा सा आपको देता हूं कि होता क्या है, कई बार हम कोई भी चीज हम परचेज करने जाते हैं तो उसमें क्या करता है शॉपकीपर या हम किसी जो है अगर मॉल में जाते हैं तो वो एक वो बना देते हैं, कहते हैं कैटेगरी बना देते हैं, जैसे प्रीमियम है जो है, फिर उसके बाद थोड़ा उससे और डाउन है मिडिल है, उसके बाद लो है। जो एक प्रीमियम वाला स्टेटस होता है ना कि जब हम एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहे हैं तो हमें वो जो प्रीमियम हमारा जो शॉपकीपर कह रहा है कि सर आप एक्स्ट्रा प्राइस पे करिएगा तो आपको थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा और जो है क्या कहते हैं थोड़ा आपको लगेगा कि मैं आपको अच्छी चीज सेल कर रहा हूँ। जब हमारा कस्टमर हमें ज्यादा प्राइसेस पे करने की क्षमता रखता है और वो हमें पे भी कर सकता है, तो जो हम प्रीमियमनेस की बात कर रहे हैं तो वो कस्टमर को फील होना चाहिए कि दैट व्हेन माय कस्टमर इज पेइंग हायर प्राइसेस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट then he should also get some benefits that are not for ordinary product. जब हमें कोई एक्स्ट्रा प्राइसेस पे कर रहा है तो उसके लिए हमें उसको अलग से बेनिफिट्स देने की जरूरत होती है। आप सपोज करो कि आप जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे हम सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम प्लेन्स की टिकट बुक करते हैं तो उसमें इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है, फिर उसके बाद और भी हायर क्लासेस होती हैं। तो इकोनॉमी क्लास में आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट्स कम मिलेंगे, सिर्फ आपको सिटिंग के लिए ही होगा। आप बिजनेस क्लास में जाते हैं तो आपका क्या कहते हैं और बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप उसमें और ज्यादा हायर प्राइसेस पे करते हैं तो फिर आपको और अलग क्लास मिलती है। इसी तरह के आपके रेलवे के एग्जाम्पल भी बेस्ट है, जैसे एक स्लीपर होता है, फिर उसके बाद थर्ड एसी होता है, सेकेंड एसी होता है, फर्स्ट एसी होता है, और फिर आपका एक ये भी कोच होता है जो अनरिजर्व्ड होता है, इसको हम जनरल डिब्बा कहते हैं। तो जब हमारा कस्टमर अच्छा डिस्टेंस हमें अगर रेलवे से हम कहीं जा रहे हैं तो हमें डिस्टेंस से हम कवर करनी है, लेकिन अगर मेरा कस्टमर मुझे हायर प्राइसेस पे कर रहा है तो मैं उसको बेनिफिट्स भी ज्यादा दूंगा। जैसे थर्ड एसी में क्या होता है कि आपका जो स्लीपर क्लास होता है सेम डिजाइनिंग होता है, बस उसमें एसी होता है। सेकेंड एसी में आते हैं तो आपका जो सीट्स होती हैं उसमें आपको थोड़ा क्या कहते हैं सीट्स का नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाते हैं। जो साइड वाली सीट होती है उसमें उसको हटा दिया जाता है, या उसको जो होती है तीन तीन आमने सामने उसमें से दो रखते हैं या कई बार एक रखते हैं, और फिर जब आप फर्स्ट एसी में जाते हैं तो आपको फिर और मॉडिफाइड मिलता है। तो इस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। कुछ स्पेशल ट्रेन होती है जैसे राजधानी है, महाराजा एक्सप्रेस है, या फिर कई जो किसी सिटी से इस पर्टिकुलर रिलेटेड ट्रेन से, जैसे व्हील्स जो हमारे जैसे राजस्थान में अगर आप जाएंगे, राजस्थान की साइड जाते हैं या मध्य प्रदेश में भोपाल वगैरह की साइड जाते हैं तो आपको क्या मिलता है कि वहाँ की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वहाँ के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, तो उसमें क्या करते हैं कि उन चीजों को दिखाने के लिए वो ट्रेन्स को भी उसी तरीके से डिजाइन करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो प्रीमियम क्लासेस हैं ट्रेन में, जो मतलब कि टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई हैं, उनके 50-50 हजार रुपए से लेके 1 लाख रुपए से लेके डिजाइन की गई हैं, उनके 50-50 हजार रुपए से लेके 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पर नाइट का चार्ज होता है। मतलब कि आप एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जा रहे हैं, इतने इतने महंगे में। खासियत क्या होती है कि आपको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आपको फील होगा कि मैं किसी ट्रेन में सफर नहीं कर रहा हूँ, किसी ट्रेन में सफर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं किसी एक लग्जूरियस होटल में आई हूँ, लग्जूरियस रिसोर्ट में आई हूँ। तो जब हमारा कहने का मतलब है ये कि जब हम प्राइस को डिजाइन कर रहे हैं, कि जब हम अपने कस्टमर से कहते हैं कि सर आप एक्स्ट्रा प्राइस पे कीजिएगा तो आपको प्रीमियम बेनिफिट्स मिलेंगे, जब हम प्रीमियमनेस की बात करते हैं तो हमें अपने कस्टमर को वो प्रीमियमनेस प्रोवाइड भी करना चाहिए। हमारा कस्टमर फील करे कि यस व्हेन आई एम पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी
then in turn I am also getting some extra benefits. So that is the crux of your pricing strategies. जैसे हम स्मार्टफोन में ही बात कर लेते हैं, आपका नॉर्मल फोन होता है, उसके बाद फिर आप थोड़ा और प्राइस पे कीजिए, उसमें और फीचर्स आएंगे, और प्राइस पे कीजिए और फीचर्स आएंगे, तो वो बात होती है। अल्टीमेटली मोबाइल फोन का काम सिंपल है कि आपको कॉल करना है, कॉल रिसीव करना है और टेक्स्ट मैसेजेस करना है। बट इन प्रेजेंट टाइम मोबाइल फोन की एप्लीकेबिलिटी हैज टोटली गॉन चेंज्ड। आप कॉल तो बहुत ही कम होता है, आप क्या कहते हैं ब्राउजिंग कर रहे हैं, आप अपना उसको मल्टीटास्किंग बना रखा है, आप उस पर अपना काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं वहां पे आप काम कर रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, कोई ईमेल आ गया आपको चेक करना है। तो कहने का मतलब है कि जब हम एक्स्ट्रा प्राइसेस की बात करते हैं तो हमारा कस्टमर जो है अगर हमें एक्स्ट्रा प्राइस पे कर रहा है तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू गिव हिम सम एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। दैट इज द बेसिक crux, or we can basic or fundamental rule of pricing. So now discuss what are various pricing strategies that marketers design for their product. So the first one is your customer value based pricing. So in this particular pricing, what we try to do, we do think from the perspective of customers and we design our prices on the basis of the values or benefits that our product is going to provide to our customers. So customer value based pricing uses buyer's perception of values as the key to pricing. So what my customer thinks about the value that a particular product is going to provide him. Value-based pricing means that the marketer cannot design a product and marketing program and then set the price. So I cannot design a product and marketing program and then set the price. नहीं, इसका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं तो मैंने पहले प्रोडक्ट को डिजाइन किया उसके बाद फिर मैं प्राइसेस को सेट कर रहा हूं। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि प्राइस इज कंसिडर्ड अलोंग विद ऑल अदर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल बिफोर द मार्केटिंग प्रोग्राम इज सेट। तो हम जब अपने प्रोडक्ट को फाइनली मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए वेरियस जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स है जब उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे पहले ही हम प्राइस को डिजाइन कर लेते हैं कि जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते जाते हैं स्टार्टिंग से ही हम डिजाइन कर लेते हैं क्योंकि हम अपने कस्टमर को सम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अपने कस्टमर की परसेप्शन पे बात कर रहे हैं कि हमारा कस्टमर क्या थिंक करता है, तो वहां से हम स्टार्टिंग करते हैं। अब कोई ऐसा नहीं कि सपोज करो कि हम शूज को मैन्युफैक्चर करते हैं, शूज को हम ले गए फैक्ट्री में ले गए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगाए, वो मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर के लिए रेडी टू उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए रेडी टू लॉन्च इन मार्केट। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि हम मार्केट में लॉन्च करने के लिए ये रेडी है, अब इसको हम प्राइस डिसाइड कर देते हैं। वैल्यू कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में ऐसा नहीं होता, हम स्टार्टिंग से ही प्राइसेस को डिजाइन करना स्टार्ट कर देते हैं हर एक स्टेज पे कि जो हमारे ऑल अदर मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम अपने प्राइसेस को डिजाइन करते रहते हैं। और मार्केटिंग प्रोग्राम को हम सेट करने से पहले यानी कि सब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कैसे लॉन्च होगा, कैसे उसको प्रमोट करेंगे, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, अवेलेबिलिटी को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, उन सब चीजों से पहले ही हम अपने प्राइसेस को सेट कर देते हैं बिकॉज हम उस वैल्यू के लिए चार्ज कर रहे हैं जो हमारा कस्टमर थिंक कर रहा है। So the company first assesses customer needs and value perception. It then sets its target price based on customer perceptions of value. So what I am doing as a marketing, first I am assessing the needs of my customers and their value perception. What are the needs of customer and what do they think, how much they can pay for that, for satisfying that particular need, for having that particular product. On the basis of these analysis, then I go for setting my target price. Target price means I set a range that in between these two extremes, I will be charging my
prices. It will be between these two ranges. I can charge any price. Means let's assume that some other programs of marketing need to be performed before I finally sell my product to customers. So what I have already done, that I have decided that this may be the range of price. So in between these two range, any price can be decided. Any final price can be decided. So it then sets its target price based on customer perceptions of value. What my customers think. So I decide on that particular perception. The targeted value, then what happens again? The targeted value and price drive decisions about what costs can be incurred and the resulting product design. So because we discussed that value-based pricing cannot design a product and marketing program and then set the pricing. So we are not first designing our product and setting a price, but what in contrary we are doing, we are first trying to design our price, first try to establish or first try to set our price for product. Then setting the price, we are just thinking to design our product and moving ahead. So the targeted value and price drive. So your targeted value that you are going to provide your customer and the price tag for that particular product, both combinedly drive decisions about what costs can be incurred and resulting the product design. So what cost can be incurred? So what will be my cost for raw material? What will be cost for my procurement of raw material? What will be my cost for marketing of that particular product? I suppose I am trying to provide that particular product to my customer. What will be my place cost, that is distribution cost? So all these decisions are taken afterward. But first, at the first side, what we are doing, we are setting targeted value and price of that particular product, because we are taking into consideration customer value, their perceptions of the value. And then pricing begins with analyzing consumer needs or customer needs and value perception, and the price is set to match perceived value. स्टार्टिंग में हमने एक रेंज कर ली कि इस रेंज में हमारी प्राइसिंग होगी। उसके बाद फिर हमने कहा कि ठीक है, अब इस हमारी प्राइसिंग रेंज का कस्टमर क्या, उसकी परसेप्शन क्या है, वो चाहता क्या है, उसकी जरूरतें क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने कहा ठीक है, उसकी ये जरूरतें हैं, उसको हम ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सपोज कि क्या होता है कि अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपको जैसे अपने लैपटॉप पे काम करना है, अब आपको एक्सेल पे शीट बनानी है, और जब आप एक्सेल पे काम करते हैं तो कई बार होता क्या है कि सपोज करें कि आप अगर फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं या फाइनेंस में जॉब करते हैं, फाइनेंस कोई ऐसे जॉब करते हैं जिसका नेचर फाइनेंशियल नेचर का है, तो आपको कई सारे फॉर्मूलेस की, कई सारे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, मैथमेटिकल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ लॉजिकल फंक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप जब देखते हैं कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपके जो एक्सेल में होता है फॉर्मूला वाले जो सिस्टम तो बहुत लिमिटेड होता है, जो हमें नॉर्मली मिलता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, अगर हमें जानकारी की वजह से या हम कहें कि हम उसके क्या कहते हैं यूज टू नहीं होते, तो हम बहुत ही लिमिटेड फंक्शंस को यूज करते हैं। बट एक्सेल में एक ऑप्शन होता है, जब आप जाते हैं अपने उसमें क्या कहते हैं उसके एक्सेल के एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, फाइल में जाते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लोर करते हैं, जब आप फॉर्मूला पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अनलिमिटेड फॉर्मूला, कई सारे फॉर्मूला और उसमें ऐड होते हैं। तो कहने का मतलब क्या था कि हमारा जो बंदा है वो फाइनेंस रिलेटेड जॉब कर रहा है, अब उसको कई सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत है। सपोज करो कि अगर उसे पता नहीं होगा कि ये मेरे एक्सेल पे जो आ रहा है सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है और उसको किसी और फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, तो उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि आप एक्सेल के सेटिंग में जाइए, वहां पे आप एडिशनल जो फॉर्मूले हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं।
फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहने का मतलब कि मेरा कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो चाहता क्या है। जैसे मैंने आपको फाइनेंस वाले इस बंदे का एग्जांपल दिया, उसी तरीके से कोई और भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट हमें पता लग जाती है, नीड्स एंड डिजायर पता लग जाती है, तब हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, तब हम अपने जो है प्रोडक्ट है उसको डिजाइन करते हैं, देन उसको मार्केट में फाइनली ऑफर करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो, XYZ, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है, आपका सर्विस है, उसके पीछे कुछ ना कुछ नीड है। सपोज करो कि अगर आप कार परचेज करके आ रहे हैं, तो आपको क्या नीड है कि मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मेरे को सेफ्टी चाहिए, मेरे को एक ऐसी जो है क्या कहते हैं डिजाइनिंग चाहिए कि जो मैं कभी भी सफर कर सकूं, मैं धूप से भी बच सकूं, मैं बरसात से भी बच सकूं, ठंड पड़ रही है उससे भी बच सकूं, और सेफ्टी है। तो जब जब तक कस्टमर की नीड को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक आप मार्केटिंग के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जब आपने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू आर गोइंग टू डिजाइन योर प्रोडक्ट। सो दैट need needs to be translated into a physical product, into a physical offering that can be made to customers, so that he can satisfy or he can come out particular problem that he is facing. Simply a need is something, a particular problem that your customer is facing. सपोज करो कि आपका कस्टमर थर्स्टी है या भूख लगी है, तो उसको नीड क्या है कि उसको कुछ फूड आइटम्स चाहिए। तो आप फूड आइटम्स डिजाइन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस है या होटल का बिजनेस है, तो उसमें आप हैं। कोई कस्टमर है क्या कहते हैं, वो एक लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करके आ रहा है, अब वो क्या होगा, फटीग होगा, बहुत ही टायर्ड होगा। तो जब आपके होटल में आपको रूम बुक करने आता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, आप उसके जो नीड्स से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कस्टमर आएगा, कहीं से ट्रेवल करके आएगा, बिजनेस ट्रिप से आएगा या कहीं वीकेंड से आएगा, या XYZ रीजन कोई भी हो सकता है, आएगा तो मेरा जो रूम होटल में रूम है उसको बुक करेगा। तो उसको एक जो हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली कस्टमर की नीड्स क्या है। जो कस्टमर की नीड्स हमें पता लग गई, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रांसलेटिंग दैट नीड इनटू अ फिजिकल प्रोडक्ट, इनटू अ फिजिकल ऑफरिंग और इनटू अ सर्विस। सो दैट इज द crux of marketing, that you first need to identify what is the need of your customer, what they really want, or what is the problem that they are facing. Can you provide some solution to that particular problem? कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब हम मार्केटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि टाटा नैनो का जो एग्जांपल था, तो टाटा नैनो के अंदर टाटा वालों ने जब नैनो को डिजाइन किया था, तो उनके पास बेसिक जो प्रॉब्लम क्या थी कि हमें एक ऐसी कार बनानी है जो 1 से 1.5 लाख रुपए में आ जाए, 1 से 1.5 लाख रुपए में आ जाए, और फीचर सारे कार वाले होने चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा उसको एक मतलब कि एक बहुत ही इनोवेटिव टाइप का जो है क्या कहते हैं, या इन्वेंशन कह सकते हैं, डिजाइन किया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको 1 से 1.5 लाख रुपए में कार मिल रही है। मैं आज से 10-15 साल पहले की बात करूं, जब टाटा नैनो मार्केट में लॉन्च हुई थी। अब तो उसमें कई सारे वेरिएंट आ गए, तो समय के अकॉर्डिंगली जब उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करते गए और उसमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करते गए, तो उसकी जो है प्राइसेस भी बढ़ गए। बट एट द इनिशियल लेवल दैट वाज द टाटा नैनो वाज ऑफर्ड एट अराउंड 1 लाख। जो स्टार्टिंग प्राइस उसका था, जो स्टार्टिंग वेरिएंट आया था, उसका 1 लाख रुपए प्राइस था। तो आपके कस्टमर की नीड क्या है, आप उसको नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आप कुछ उसको ऑफर कर सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग टू सर्वाइव एनी बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अब जैसे सपोज करो कि आप अकाउंटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, या आप कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहे हैं, आप चार्टेड फर्म जो है सीए जो फर्म है वो चला रहे हैं आप, या फिर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं। तो आपके कस्टमर की नीड क्या है या प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये मेरे इनकम से, ये मेरे एक्सपेंडिचर से, अब मेरे को रिटर्न फाइल करना है। क्यों रिटर्न फाइल निकल रहा है? क्योंकि मेरे को अगर मैं एक्सपेंडिचर करता हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, जब मेरे से कोई नोटिस आएगा तो मैं उसको सही से रिस्पॉन्ड कर सकूँ। तो मेरे को इस प्रॉब्लम से निकलना है। तो ये मेरे अकाउंट्स डिटेल हैं, अब आप इनको
कैसे भी करके मेरे को रिटर्न बना के दीजिए। मेरी अनदर प्रॉब्लम क्या है कि मैं टैक्सेस कम से कम पे करना चाहता हूँ, जितना मिनिमम टैक्सेस हो सकता है मैं उतना पे करना चाहता हूँ, आप इसको कहीं से भी एडजस्टमेंट करो। दैट इज द नीड दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई बिफोर डिजाइनिंग योर प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट है वो किसी प्रॉब्लम का, किसी कस्टमर की नीड का वो सोल्यूशन है। अगर कोई उसके पास प्रॉब्लम है, वो किसी प्रॉब्लम से जो है क्या कहते हैं फेस कर रहा है किसी प्रॉब्लम को, तो वो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज द सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। सो स्टार्टिंग से आपको अपने कस्टमर की नीड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ओके, तो ये हमने बात कर ली कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की, जिसमें हम सिंपली कस्टमर की वैल्यू परसेप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा कस्टमर जब हम उसको प्राइस और प्रोडक्ट ऑफर करेंगे तो उसकी अजम्पशंस क्या होगी, वो हमारे प्राइस टैग को और प्रोडक्ट को कैसे परसीव करेगा। अब इंडियंस जो है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द सेक्शंस क्या है, मिडिल फैमिली है, तो हमारे लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत हमारे लिए क्या कहते हैं इसेंशियल है कि हम प्राइस के बेस पे ही डिसाइड करते हैं कि वेदर वी शुड परचेज पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट। सो जो वैल्यू है, जो प्राइस है, उसको आपको कस्टमर की जो परसेप्शन है वो ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे 2-3 टाइप हैं इसके कि हमारे वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में, कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या क्या हमारी मेथड्स हैं, सब टाइप्स क्या है। तो पहला गुड वैल्यू प्राइसिंग। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑफरिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस एट अ फेयर प्राइस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं इस वाले मेथड में कि हम अपने कस्टमर को राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड गुड सर्विस एट द फेयर प्राइस प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो उसकी अल्टीमेटली हम गुड क्वालिटी पे बात कर रहे हैं कि हम आपको अगर कोई प्रोडक्ट जो है ऑफर कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है बेटर है। तो इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है कि जैसे दिस इन्वॉल्व्स लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम प्रोडक्ट और न्यू लोअर प्राइस लाइंस। तो इसमें हम जो हमने बात करी ना, जैसे मैंने आपको प्लेन का एग्जांपल दिया था कि बिजनेस क्लास है, इकोनॉमी क्लास है, उसके बिजनेस के ऊपर भी कोई और क्लास है, या इकोनॉमी की क्लास के नीचे, या रेलवे की एग्जांपल है, आपको फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, देन आपका स्लीपर है, देन आपका अनरिजर्व्ड जो है क्या कहते हैं कोच भी है। तो उसमें क्या हम अपने जो इसका जो टारगेट है कि हम लेस एक्सपेंसिव जो है वर्जन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम एक उसको क्वालिटी दे रहे हैं, उसको अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स लेस एक्सपेंसिव वर्जन्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स और न्यू लोअर प्राइस लाइंस। एग्जांपल, Walmart launched an extreme value store brand called Price First. So what was the objective of this particular brand store that was offered as a Price First? कि जो हमारा प्राइस था वो ट्राई करता था वॉलमार्ट की वो लोअर हो। जब हमारा कस्टमर परचेज करने आ रहा है कुछ, तो उसे प्राइसेस लो हो, उसे लो प्राइस पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो परचेज करे, उसको ऐसा लगे कि यस ये इसका जो प्राइस है सबसे कम है। तो प्राइस्ड इवन लोअर देन द रिटेलर्स ऑलरेडी लो प्राइस्ड ग्रेट वैल्यू ब्रांड। तो जो स्ट्रेटेजीज होती है मार्केटिंग की, जो मार्केटियर्स डिसाइड करते हैं, तो उसमें कई सारी स्ट्रेटेजीज होते हैं। अब जैसे आपको रेलवे का है, अगर आप फर्स्ट एसी में जाएंगे तो बहुत ज्यादा चार्ज होगा, सेकंड एसी में जाएंगे तो और कम होगा, थर्ड एसी में आएंगे और कम होगा, स्लीपर में आएंगे और कम होगा, जनरल डिब्बे में आएंगे और कम होगा। फिर जनरल डिब्बे में कैटेगरी है कि आप सुपर फास्ट ट्रेन से जाना चाहते हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेन से जाना चाहते हैं, पैसेंजर से जाना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइसेस जो है डिसाइड होगा। तो जनरल डिब्बे में बेसिकली अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन से जाना चाह रहे हैं, यस आपका जो टिकट है वो सुपर फास्ट कैटेगरी है, तो उसका थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा। पैसेंजर ट्रेन का टिकट है या मेल जो है एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट है, तो वो और थोड़ा कम होगा। तो अल्टीमेटली बट वैल्यू जो हमें ऑफर की, जो हमें डिस्टेंस कवर करना है, वो हमारी सेम है। तो प्राइस फर्स्ट ऑफर्स थ्रिफ्ट
conscious customer rock bottom prices on grocery staples. So वैल्यू जो है, क्योंकि अब जैसे वॉलमार्ट के इसने एग्जांपल दे रखा है कि अगर मैं कुछ चीज वॉलमार्ट से परचेज करके लेता हूँ, उसके स्टोर से लेकर आता हूँ, तो जो उसकी क्वालिटी है मैं जानता हूँ कि ये अच्छी चीज रखेगा। जब हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो हम जो है जो वेल इस्टेब्लिश्ड मॉल्स हैं जो वहीं पर क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट रख रहा है वो अच्छा है। प्राइसेस जो है क्या कहते हैं, अगर लो हो जाए उस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट पे तो फिर इट इज समथिंग लाइक दैट आइसिंग ऑन केक, जो उसके कहते हैं सोने पे सुहागा, तो वो चीज है। तो गुड वैल्यू अनदर इसका एग्जाम जो है मेथड क्या है कि ऑल्सो इन्वॉल्व्स रीडिजाइनिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड्स टू ऑफर मोर क्वालिटी फॉर अ गिवन प्राइस और द सेम क्वालिटी फॉर लेस। तो यहाँ पे क्या करें कि हम और भी तरीके से डिजाइन करते हैं कि हम कुछ और क्वालिटी उसमें ऑफर कर दें उसको जो है गिवन प्राइस पे, या फिर हम सेम क्वालिटी उसको ऑफर करें, उसका प्राइस कम कर दें। सम कंपनीज इवन सक्सीड बाय ऑफरिंग लेस वैल्यू बट एट अ लोअर प्राइस। तो एग्जांपल स्पिरिट एयरलाइंस का इसमें दे रखा है कि यूज कस्टमर बेयर फेयर प्राइसिंग बाय विच दे गेट लेस बट डोंट पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। तो इसमें इसने क्या कर रखा है स्पिरिट एयरलाइंस ने कि हम कस्टमर के लिए सिर्फ उतना ही चार्ज कर रहे हैं जितना सर्विस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारे यहाँ पे जो टीवी कनेक्शन है उनके जो हम जो पर्टिकुलर क्या कहते हैं वो है हमारे चैनल्स हैं। तो पहले क्या होता था कि एक टीवी एंटीना लगता था, उसमें आपको मंथली चार्जेस देना है। थोड़ा और रिवोल्यूशन हुआ तो फिर डिजिटल जो हमारे यहाँ पे सेटअप बॉक्स रेवोल्यूशन हुआ, वहां पे उसमें क्या हुआ कि आपको चैनल का कॉम्बिनेशन दिया और फिर उसके बाद क्या किया कि आप अगर इन ये प्राइस वाला ये प्लान चूज कर रहे हैं इतना प्राइस मिलेगा आपको, ये चैनल मिलेंगे, ये वाला चूज कर दे इतना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आप उन्हीं चैनल्स के जो है क्या कहते हैं प्राइसेस पे कीजिए जिनको आप देखना चाहते हैं। तो दैट इज द केस ऑफ गुड वैल्यू प्राइसिंग। तो स्पिरिट एयरलाइंस ने जो किया वही सेटअप बॉक्स रेवोल्यूशन है कि हम अपने कस्टमर से उन्हीं चैनल्स के लिए चार्ज कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं। तो दैट इज सिंपली बाय विच दे गेट लेस बट डोंट पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट। हम एक लिमिटेड चैनल देख रहे हैं बट हम उन्हीं चैनल्स के लिए पे कर रहे हैं, अब एडिशनली कुछ और पे नहीं कर रहे हैं। तो एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ गुड वैल्यू प्राइसिंग एट द रिटेल लेवल इज कॉल्ड एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो जो आप मॉल्स में जाते हैं कि आपको कई जो मॉल्स की स्ट्रेटेजीज होती है कि सर इस वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लोवेस्ट प्राइस मिलेगा। बिग बाजार है, आपका रिलायंस स्टोर है, या और भी आप जो भी थिंक कर सके कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे वो आपका जो वहाँ पे अटेंडेंट होते हैं या फिर जो आपकी वहाँ पे हेल्प करने वाले हैं वो आपको कहते हैं सर इस सेक्शन में लोवेस्ट प्राइस है, इस पर्टिकुलर जो है ब्रांड के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास लोवेस्ट प्राइस है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड वैल्यू प्राइसिंग। सो दो तरीके से मैं कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं कि प्राइस लोअर करके कोई कुछ उसको कस्टमर को उसी ब्रांड पर्टिकुलर ब्रांड का हम जो है क्या कहते हैं ऑफर कर सकते हैं, या फिर हम उसको उतना ही चार्ज करें जो हम उसको क्या कहते हैं ऑफर कर रहे हैं। और तीसरा किसमें हम उसमें गुड वैल्यू प्राइसिंग जो है एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम जिसमें कहेंगे कि यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है बेसिकली रिटेल स्टोर्स में ज्यादा काम करता है कि जिसमें हमारे कस्टमर्स जब आते हैं तो उसमें हम उनको कहते हैं कि इस वाले सेक्शन में या इस वाले पर्टिकुलर ब्रांड पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वी आर चार्जिंग लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। ओके, सो मूविंग अहेड वैल्यू एडेड प्राइसिंग। सो गुड वैल्यू में हमने क्या किया कि हम उसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कि उसमें हम क्या कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर। अब वैल्यू एडेड में क्या है कि does not mean simply charging what customer want to pay or setting low prices to meet competition। यहाँ पे हम लो प्राइस नहीं चार्ज हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग इसमें हम कर रहे हैं कि कटिंग प्राइसेस टू मैच कॉम्पिटिटर्स, एड वैल्यू, क्वालिटी, सर्विसेज एंड वैल्यू एडेड फीचर्स टू डिफरेंशिएट देयर ऑफर्स एंड thus सपोर्ट देयर हायर प्राइसेस। अब यहाँ पे हमारा टारगेट क्या था कि हम उनको लोएस्ट प्राइस पॉसिबल प्राइस जो है क्या कहते हैं हम चार्ज करते हैं, बट अभी अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब हम उनसे हायर प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं
तो हम उस हायर प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं, उस हायर प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं। सिंपल और स्ट्रेट एग्जांपल आपका मोबाइल नेटवर्क के जो है कंपनीज होती हैं, आप किसी भी कंपनीज का जो सिम कार्ड यूज करते हैं उसका एग्जांपल है। जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं या आप जो स्क्रीन पे जब बैलेंस देखते हैं तो उसमें वैल्यू एडेड का जो ऑप्शन होता है तो उसमें आपके कॉलर ट्यून है, आप कुछ और है, एसएमएस मिस कॉल अलर्ट सर्विस है, आप क्या कहते हैं कुछ आपको अगर न्यूज अपडेट चाहिए या फिर और कुछ अपडेट चाहिए तो आप जब उसमें वैल्यू एडेड सेक्शंस में जाते हैं तो वैल्यू एडेड सेक्शंस का सिंपली या फिर हम कहें वैल्यू एडेड प्राइसिंग का सिंपल मेथड है कि अगर मैं अपने कस्टमर्स को कुछ एडिशनल प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके लिए मैं उनसे प्राइसेस चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। जैसे कॉलर ट्यून्स का जो है पहले क्या होता था, जब ये सारे हमारे क्या कहते हैं जियो रेवोल्यूशन वगैरह नहीं आया था तो उसके पहले 30 रुपीज या 35 रुपीज पर मंथ चार्ज करते थे। उसी तरीके से आपका मिस्ड कॉल अलर्ट लेना था तो उसके लिए चार्ज होता था, और आपको सर्विस लेनी होती थी तो उसके लिए चार्ज होता था।